जंगली रमी पे आओ ना। Hello, good evening दोस्तों. Welcome to ChartPeCharcha episode number 93. Hope my screen is visible and voice is clear. If yes, type yes. So as usual, we can start our today's session. Good evening guys. Good evening, crystal clear. Okay, thank you for the confirmation. Okay, so as usual, those who are in Twitter can go to Twitter and try to retweet this tweet. So many will join via this link and try to share this YouTube link in your WhatsApp group or friends group. So they may get benefited via this session. Okay. So as usual, let's start with Nifty, Bank Nifty, and then we'll discuss about some stocks, some sector, which sector you have to focus on from here, which stocks, which sector showing you a good momentum, good breakout, right? तो वो सब हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. So let's start with Nifty and जैसे आप देख रहे हो Nifty was in continuously downtrend and the first sign was 21 December, right? 21 December was a first sign here that, like, if you check our old videos of December 21, from there we turn bearish for a short period of time, and slowly this is a candle where we turn bullish based on some data कि as long as the budget day low is hold, हम लोग expect कर सकते हैं upside rally, but after the budget day uh, almost market held that low for a 2 week. Market rallied, but by taking this decision and market gone and break that low, right? So after that, this via tweet I have given two levels, right? I have given two levels. One is 16,855, another was 755. So that was a zone that will act as a very strong support for the market, and market exactly made a base there, and from there market rallying very well, and now we are near again strong resistance, right? ठीक है, तो ये सब चीजें हुई. What is the current scenario, right? So if you see, currently market taking support at 200 daily moving average. आप clearly देख रहे हो almost from last 1, 2, 3 and 4. Almost from last 4 trading session, market is not able to close below 200 days moving average, right? और वहां पर आप देख रहे हो एक hammer types of candle form हो रहा है. And this is 17 April. That was the first panic day after a huge rally of that 1000 point, right? ये इस दिन है, एंड एग्जैक्टली दैट लो ऑलमोस्ट आप एग्जैक्टली आप देखोगे ऑलमोस्ट 200 मूविंग एवरेज के पास बना, एंड ये हुआ, राइट? सो व्हाट्स नेक्स्ट फ्रॉम हियर ऑन? अब यहाँ से नेक्स्ट वीक के लिए क्या आपको वॉच आउट करना है? विच आर द की लेवल्स? तो सबसे पहला की लेवल्स है जो आपको वॉच आउट करना है नेक्स्ट वीक के लिए, दिस लो, राइट? और यू कैन से दिस हैमर लो, ठीक है, बिकॉज लो ऑफ दैट कैंडल इज 17,574 एंड लो ऑफ फ्राइडे इज ऑलमोस्ट 553, राइट? सो ऑलमोस्ट 74 को भी अगर हम लोग राउंड फिगर में करने की कोशिश करें, so that comes near about 17,550. So this is the key levels you have to watch out on Monday. This is the support number 1. If market close below this support level, then we can expect the short term correction in market again. Okay, ठीक है. And as usual, that high is that big red candle high is 863, right? जब तक मार्केट अब उस वापस हाई को क्रॉस नहीं करता है, देन अपसाइड इज कैप्ड, एंड अगेन अगर मार्केट उस हाई को क्रॉस करता है, देन दिस इज द एरिया दैट यू हैव टू वॉच आउट. 18,200 से लेके 250 का जो लेवल है, ये आपका नेक्स्ट टारगेट बनता है, राइट? ठीक है, तो नाउ व्हाट इज माय व्यू? मेरा व्यू ऐसा है कि बिफोर गोइंग अप वी मे करेक्ट वंस, राइट? बिकॉज देयर इज अ गैप that is pending
ऑन अ डाउन साइड, ठीक है, एक गैप से जो अभी तक पेंडिंग है, ठीक है। सो अगेन मेरा व्यू है गैप फिल करना चाहिए। इट मींस मार्केट में टेस्ट 17200 300 लेवल्स इन कमिंग डेज, बट द कंफर्मेशन कम्स द डे वी क्लोज बिलो 17550, राइट। सो द व्यू इज वेरी क्लियर। अगर हम लोग 17550 के नीचे क्लोज होते हैं, देन अगेन द शॉर्ट टर्म करेक्शंस एंड मार्केट में फिल दिस गैप नियर 17200 टू 300। ये एक जो लेवल है, मार्केट उस लेवल को टेस्ट कर सकता है, एंड देन अगेन फ्रॉम दैट लेवल अप ट्रेंड मे स्टार्ट टुवर्ड्स द सेम एरिया, ठीक है। तो बड़ा पैनिक फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, बट ठीक है, शॉर्ट टर्म पैनिक वी मे एक्सपेक्ट। सो द एक्सपेक्टेशन इज लाइक मार्केट में टेस्ट दिस लेवल एंड देन वी मूव लाइक दिस एंड फिर क्या होगा। अभी क्या है, द वीकली मोमेंटम, द मंथली मोमेंटम दैट इज इन नेगेटिव टेरिटरी। ये जो रैली हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ ओवरसोल्ड टेरिटरी, मार्केट इज ओवरसोल्ड, दैट्स व्हाई वी मेड अ गुड बाउंस। एंड अनदर इज वी ऑलमोस्ट इन अ बियर फेज और यू कैन से इन अ साइडवेज फेज फ्रॉम लास्ट 18 मंथ। 18 महीने से हम डाउन ट्रेंड से साइडवेज फेज में ही है, अप ट्रेंड में नहीं है, राइट। तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर है फॉर बुल्स कि भैया जो भी करेक्शन आ रहे हैं सूनर और लेटर इट विल ओवर एंड मार्केट में परफॉर्म फ्रॉम हियर ऑन, मार्केट में हिट न्यू हाई यार ये सब आएगा, बट उसका अभी कंफर्मेशन नहीं आया, ठीक है। सो फॉर जैसे ही हम अगले वीक नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे, वेन एवर द कंफर्मेशन विल हैपन वी विल से कॉन्फिडेंसली कि यस द बॉटम इज फॉर्म एंड वी आर रेडी फॉर XYZ लेवल, ठीक है। तो अभी के लिए 17550 एंड अपसाइड में 17860, यू मे सी 17860, ये हमारा हो गया R1, दैट इज अ रेजिस्टेंस 1, ठीक है। तो देयर इज अ चांस मार्केट में स्पेंड टाइम बिटवीन दिस लेवल, ये 300 पॉइंट के रेंज में भी मार्केट अपना टाइम स्पेंड कर सकता है, राइट। बट एज लॉन्ग एज 750 होल्ड है, बुल्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 860 होल्ड है, बियर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मार्केट टाइम पास कर सकता है। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो डेफिनेटली गैप फिलिंग इज पेंडिंग बिकॉज देयर इज अ नो सपोर्ट ऑन अ डाउन साइड, वन वे रैली फ्रॉम हियर टू हियर, दैट्स व्हाई द नेक्स्ट सपोर्ट कम्स ऑलमोस्ट, ये जो यहाँ पे आप कंटिन्यूसली देख रहे हो, दिस वाज द टॉप, राइट, दिस वाज द टॉप, राइट। सो द सेम लेवल में एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर द मार्केट एक्सपेक्टिंग दिस गैप्स, ठीक है। तो एक अच्छा सपोर्ट है 250 से लेकर 350 150 के बीच में, ठीक। तो दिस आर द व्यू ऑन निफ्टी, ठीक है। तो अगेन द ट्रेंड इज डाउन, short term due to oversold market we bounced, and now market is making one small range of 300 point. So again if market breaks that support, there is a chance we going to feel the downside gaps, okay? So these are the view on Nifty for the next week, and as long as 860 cross नहीं होगा, so then again अगर 860 जब तक क्रॉस नहीं हो रहा है तो देयर इज अ हाई चांस कि 550 ब्रेक होना ही है, ठीक है। तो यही है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गैप फिल होना चाहिए, बट आई मे गो रॉन्ग, सो दैट्स व्हाई फॉर द कंफर्मेशन यू हैव टू वेट अ क्लोज बिलो 7550, ओके। मंडे एज यूजुअल ओआरबी सेटअप पे आपको फोकस करना है, 15 मिनट का हाई लो मार्क करना है आपको, एंड उसके बाद लाइक मार्केट ड्यू टू रिलायंस एंड आईसीआईसीआई बैंक द रिजल्ट वाज एक्सेलेंट और स्टनिंग रिजल्ट आया, तो मार्केट में ओपन गैप अप, राइट, मार्केट गैप अप हो सकता है। तो गैप अप के बाद आपको इंतजार करना है, फर्स्ट 15 मिनट कुछ नहीं करना है, उसके हाई एंड लो को मार्क करना है, एंड as usual there is a high chance कि market may break the low of 15 minute and then it may fill the gaps and नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। अगर हाई क्रॉस करता है then you can go long for the target of 860 या जो भी नेक्स्ट रजिस्टेंस है, दैट इज अनदर नेक्स्ट रजिस्टेंस इज 760, तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज अ व्यू ऑन निफ्टी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या व्यू है? सो यस, निफ्टी बैंक, okay, so Nifty Bank it's broken its budget day high. This is a interesting point जो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि निफ्टी बैंक ने बजट डे हाई क्रॉस कर लिया और अच्छा कैंडल के साथ क्लोज भी दिया, बट अगेन थोड़ा सा लॉस ऑफ मोमेंटम में बिकॉज वन वे रैली की तरफ गया, एंड दिस इज वन, अनदर इज एफएमसीजी, दिस इज एफएमसीजी अनदर इंडेक्स दैट ने जिसने बजट डे का हाई क्रॉस अभी तक किया है, राइट। तो इसमें भी हम वही हम देख रहे हैं, कुछ नहीं करना है, चांस 41799 जो पैनिक डे था उसका लो है। अगर मार्केट उस पैनिक डे के लो को ब्रेक करता है देन देयर इज अ चांस ऑफ टेस्टिंग दिस 4700, यानी दिस इज अ लो दैट इज 41799, सो बिलो
41,800 क्लोज, टारगेट 4700। दिस इज द व्यू ऑन बैंक। ये क्लियर कट व्यू इसमें दिख रहा है, ठीक है, कि अगर हम इस पैनिक डे लो को ब्रेक करते हैं, सोचा अगर पैनिक डे लो के पास आते हैं तो इट इज अ नाउ रीटेस्टिंग पॉइंट ऑफ प्रीवियस ब्रेकआउट, राइट, ठीक है। तो यहाँ से यूटर्न भी हो सकते हैं, बट मोमेंटम सपोर्ट नहीं में, इसलिए देयर इज अ चांस इट मे गो फेल एंड इट मे टेस्ट हियर एंड देन इट मे गो, राइट। तो इस तरह की प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं। देयर इज अ चांस हम लोग 200 मूविंग एवरेज के पास भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी एक गैप्स है, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। तो क्लियर व्यू ये है कि जब तक ये हाई क्रॉस नहीं हो रहा है, इसमें अभी हमें लॉन्ग ये करना है, बिकॉज सभी जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, लॉस ऑफ मोमेंटम जो रैली है, उसके बाद ये रैली के बाद इसे एक टायर्डनेस आपको प्रेडिक्शन में दिख रहा है। ओके, क्लियर। सो दिस इज व्यू ऑन बैंक निफ्टी। द बैंक निफ्टी व्यू इज वेरी क्लियर, एज लॉन्ग एज वी आर होल्डिंग 41,800 टाइम पास हो सकता है, ठीक है। न्यू हाई की पॉसिबिलिटी कब है, जब आप 42,600 क्रॉस कर रहे हो, उसके बाद भी देयर इज अ वन बिग बिग रेजिस्टेंस है 43, 4100, ठीक है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ओके, सो ये आपको वॉच आउट करना चाहिए बिलो 41, एक 1000 पॉइंट के करेक्शंस के लिए, ठीक है। तो दैट इज व्यू ऑन बैंक निफ्टी। Okay, so we are live 100. Requesting you hit on like button. Okay, now you may ask what are the reason to discontinue this series. The reason was very simple, demotivation, because we put lots of effort, we put lots of our time, and despite that, जो जिस तरह के व्यूज आने चाहिए वो नहीं आ रहे थे, तो दैट इज द रीजन आई स्किप्ड एंड आई स्पेंडेड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ऑल दिस। दीज आर द सिंपल रीजन। तो हर एक को मोटिवेशन लगता है, एंड ऐसा नहीं है कि वी आल्सो ह्यूमन बीइंग, सो इसलिए दीज आर द रीजंस, ठीक है। बट लेट्स स्टार्ट अगेन एंड अगेन। अगर दो चार वीडियो में व्यूज नहीं आते तो अगेन आई एम थोड़ा सा मूडी आदमी हूँ, तो मैं वापस बंद कर सकता हूँ। ओके, सो दिस इज व्यू ऑन बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स move to which are the sectors that's showing you momentum from here. Okay, कौन से सेक्टर है जो यहाँ से अच्छा मोमेंटम या एक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, राइट। जैसे मैंने नाम लिया, पहला जो है दैट इज निफ्टी एफएमसीजी, राइट। व्हाई? इफ यू ओपन द चार्ट ऑफ निफ्टी एफएमसीजी, यू सी क्लियरली अ ब्रेकआउट, राइट। आप देखेंगे 5 दिसंबर 22 को जो टॉप बना था, वहां से जो कंसोलिडेशन चल रहे थे, ठीक है, उसका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, राइट। एंड अलोंग विद दैट इन दिस सेक्टर आपका आईटीसी, राइट, आईटीसी अनदर वेरी गुड स्टॉक जो कंटिन्यूसली ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट एंड लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। अलोंग विद दैट ये, तो अगेन जो मोमेंटम लॉस्ट हम लोग को दिख रहे थे ड्यू टू दिस कैंडल्स, आप देख रहे हो कंसोलिडेशन दिख रहे थे, एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ऑलमोस्ट एक 5 से 6 महीने के बाद वापस मोमेंटम आते हुए दिख रहा है, एंड क्लियर कट हमें इसमें ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं, राइट। तो एफएमसीजी सेक्टर पे के स्टॉक्स में जैसे आईटीसी तो है ही मोमेंटम, और आपके हिसाब से देखिए अब और किसमें मोमेंटम है। सो दिस इज द अनदर स्टॉक्स वेयर यू कैन कीप ऑन, ये सेक्टर्स पे अगले 1-2 हफ्ते के हिसाब से आप इसमें अपना पॉजिटिव व्यू बना के चल सकते हैं। अनदर निफ्टी फार्मा, दैट इज अनदर sector that is showing you momentum. So again, as per trend line or you can say super trend, 200 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी हम देखेंगे तो वी एग्जैक्टली देयर। सो सूनर और लेटर इफ वी क्रॉसेस दिस हाई, तो इसमें भी टुवर्ड्स नेक्स्ट रेजिस्टेंस 13,200, 13,200 के लेवल्स को हम लोग इसमें भी देख सकते हैं। सो दिस इज अनदर स्टॉक वीकली 200 मूविंग एवरेज से एग्जैक्टली टेकन अ मोमेंटम, और अच्छा खासा 21 से लेके 23 2 साल का एकदम डाउन ट्रेंड था, राइट। तो आफ्टर दैट डाउन ट्रेंड अगर हम लोग मंथली कैंडल्स को देखते हैं, सो वेरी पावरफुल मंथली कैंडल फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स। सो शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी लॉन्ग टर्म मोमेंटम अभी डेवलप नहीं हुआ है, बट एज पर शॉर्ट टर्म फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 1 or 2 वीक, दिस इज अनदर स्टॉक्स, दिस इज अनदर सेक्टर वेयर वी कैन फोकस। इसमें हमने शायद एक स्टॉक्स भी डिस्कस किया था, दैट इज कैडिला, दैट इज जाइडस लाइफ साइंस, दैट इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, ठीक है। तो आज भी कुछ फार्मा स्टॉक डिस्कस करेंगे जिसपे आप अपना नजर रख सकते हो, ठीक। एंड देन आफ्टर दैट सीएनएक्स फाइनेंस, CNX Finance Services, this another sector where momentum is developed, right? So any corrections near this level, ये अगर कोई भी करेक्शन आते हैं नियर दिस लेवल्स, तो इसमें भी हम लोग फाइनेंस सेक्टर पे भी पॉजिटिव व्यू लेके चल सकते हैं टुवर्ड्स 19,500, ठीक है।
तो एनी करेक्शंस इन दिस, सो मतलब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में कौन कौन से स्टॉक्स है आप उसमें अपना स्टडी कर सकते हो, ठीक है। एंड द लास्ट निफ्टी एनर्जी, यस, सो इट्स ऑलमोस्ट टेकन एट सपोर्ट एट 21, जो दिसंबर 21 का बॉटम्स था, राइट, इट टेकन सपोर्ट है हियर, सो इट्स अ वेरी गुड डबल बॉटम, लॉन्ग टर्म बॉटम पैटर्न, right? And if you zoom, almost after 4 week we crossed that high. Now we are retesting that high, right? So sooner or later again इसमें भी एक हम लोग मोमेंटम टूवर्ड्स दिस लेवल देख सकते हैं। सो विच आर द स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ निफ्टी एनर्जी, आप उस पर फोकस कर सकते हो, ठीक है। सो मेरे को सबसे ज्यादा एफएमसीजी नंबर 2 पे अगर आप डालोगे तो निफ्टी एनर्जी पे आप उस सेक्टर पे आप शॉर्ट टर्म्स के लिए फोकस कर सकते हो। ओके, सो your analysis is must look good, so please don't be demotivated. Thank you. Please keep series going on. We get the series very good guidance. Thanks. Listen, David. Yes. Thank you so much. We'll try. Your analysis is the best. Please continue. Okay. ठीक है. So these are the index that we can focus on. ठीक है. तो FMCG पे फोकस कीजिए. Which are the stocks जो 200 के ऊपर हो, ब्रेकआउट दे रहे हो, तो उन सब पे आप फोकस कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट लेट्स डिस्कस सम स्टॉक्स जो अच्छे लग रहे हैं, ठीक है. अगेन गोइंग फॉरवर्ड आई विल ट्राई टू स्किप एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस लेवल, एंड यस आई विल जस्ट डिस्कस कि दीस आर द स्टॉक लुक्स गुड, ठीक है. रेस्ट यू हैव टू टेक योर डिसीजन वेदर बाय और नॉट, ये जो भी है, ठीक है. सो डॉक्टर रेड्डी, दिस इज स्टॉक्स लाइक लुक्स गुड फॉर पोजिशनल पर्पस आल्सो. इफ यू ओपन द चार्ट ऑफ डॉक्टर रेड्डी इन अ वीकली टाइम फ्रेम, तो प्राइस एक्शन समझते हैं, ठीक है. सो a very good breakout of आप इस तरह से बना सकते हो, that is we call as ascending triangle breakout और जो भी है. So always I say never buy at CMP, never buy at CMP, wait for corrections, any corrections towards this zone, that is 4 5 6 9, ये जो levels है यहाँ पर अगर आते हैं तो it's a very good zone to accumulate via this swing low for target of 5574. ये positional view होगा short terms के लिए, you can make this as a, so this is another stocks that looks good from here onward on a short term to long term purpose. 6 से 8 महीने के हिसाब से लेके 1 से 2 हफ्ते के हिसाब से भी इस लेवल से आप इस लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है. डॉक्टर रेड्डी फर्मा स्टॉक्स, ठीक है. दिस इज अ सेकंड फर्मा स्टॉक आफ्टर जाइडस. तो ये भी ऑलमोस्ट लाइक फर्मा में अभी भी फर्मा इंडेक्स अभी भी डाउन ट्रेंड में, बट दिस स्टॉक्स हैव ब्रोकन इट्स strong resistance, or you can say higher high formation start हो चुका है, right? And it's exactly taken support at weekly 200 moving average, ठीक है. कि despite these big corrections, this stock have not gone below 200 weekly. There are so many stocks that gone below 200 weekly, ठीक है. बट दिस स्टॉक्स ने उसको होल्ड रखा, पूरे बैक फेजेस ऑफ फॉर्मा में उसको कंसोलिडेशन में रखा प्राइस को, ठीक है. उसमें उस वेग नहीं हुआ, एंड नाउ वर्मा इज शोइंग स्ट्रेंथ, उसमें ये सबसे पहले ब्रेकआउट हो रहा है. सो इट मे बी द लीडर ऑफ नेक्स्ट, अगर फर्मा में अगर नेक्स्ट बुल रन आता है, सो दिस स्टॉक्स में परफॉर्म बेटर कंपेयर टू अदर्स, राइट. तो उसका इम्पोर्टेंट, उसका कंफर्मेशन कब होगा? द डे वी विल ब्रेक 5614 बिफोर निफ्टी फर्मा, ठीक है. बट अगेन शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से ऑलमोस्ट 4 6 के, दिस इज द एरिया जो एक अच्छा एरिया है टू एक्यूमुलेट फॉर टारगेट ऑफ दिस, नीड पेशेंस, ठीक है. So this is first stock that you can watch out. Another is Coal India. After like एक डिविडेंड के बाद इसमें मोमेंटम लॉस्ट हो गया था, राइट. हियर इट इज आफ्टर अ गुड रैली टू 263, डिविडेंड अनाउंस, गैप डाउन, दैट इज एडजस्टमेंट. आफ्टर दैट इट रीटेस्टेड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, दैट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, कंसिडर लॉस ऑफ मोमेंटम. बट नाउ यू सी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप क्लियरली देख रहे हो कि देयर इज अ ब्रेकआउट, राइट, जो एक डाउनवर्ड चैनल का था, दैट इज क्लियर कट ब्रेकआउट देख रहे हो. सो इसमें भी अगेन फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस, शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्पस 263 का लेवल वापस अचीव हो सकता है, राइट. ये अब दिस इज द लो दैट विल बी अ स्टॉप लॉस, एंड दिस दिस एरिया, राइट, दिस इज द एरिया जो any deep towards this area you can accumulate it near 200 moving average, daily moving average. These are the area to accumulate for the 263. And for long term purpose, if you see the big charts,
then there's a chance of, as we already discussed, लॉन्ग टर्म पर्पस आप ये 300 320 से लेकर 340 के लेवल्स को अचीव कर सकते हैं. सो अगेन द मोमेंटम इज बैक नाउ इन दिस कोल इंडिया. सो दिस इज अनदर स्टॉक वेयर यू कैन फोकस ऑन. ठीक है, एंट्री, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, ये सब चीजें प्रॉपर होनी चाहिए. व्यू मे गोज रॉन्ग, राइट, नो वन इज गॉड हियर. ठीक है, सो व्यू रॉन्ग हो सकते हैं. ठीक है, मार्केट इज इन बियर ग्रिप फ्रॉम लास्ट 18 months, so consider, but once market perform, these only thing you can save is your stop loss. ठीक है, so that is the point that I discussed कि भाई stop loss 208, बाकी एंट्री आप कहीं भी करो, as per that make a position sizing. एक टारगेट 271, दूसरा टारगेट 340. ठीक है, so जिस तरह से आप राइड कर सको वो सब चीजें you have to build up. ठीक है, एंड द लास्ट जो आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक डिस्कस कर सकते हो जो ठीक लग रहा है चार्ट पे, rather than buying anything, एवरेज इंडस्ट्री. एवरेज इंडस्ट्री, if you look at daily chart, yes. So reason is very simple. Triple top breakout after a long time. So any deep towards 776, 780 is a very good buy with a stop loss of 720. So it's a risk of almost 60 rupees. एंड उसके सामने आपको 973 ऑलमोस्ट, अगर आप देखें 780 से लेके 980, राइट, दैट इज almost 200 rupees. So 1:3 more than reward है. So risk reward ratio 1:3, and this is again a short term trade. So any deep towards यहाँ पे आ रहा है आप लीजिए, स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए. नहीं आ रहा है, लाइक टुमारो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट में जंप, कुछ भी न्यूज हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस कैंडल, लाइक कुछ तो वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है. सो देयर इज अ हाई चांस कि कुछ गुड न्यूज आया तो एक 780 कल ही आ सकता है, तो इग्नोर इट, राइट, सिंपल. तो आपके लेवल्स पे मिल रहा है आप लीजिए, अदरवाइज आप उसको इग्नोर कीजिए. ओके, so with this, thank you so much. Follow Nifty, Bank Nifty, Outlook, levels, and Nifty FMCG पे फोकस कीजिए for next 2 to 3 weeks, जिसमें अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं. निफ्टी एफएमसीजी ने लाइफ टाइम ब्रेकआउट दिया है 6 महीने के बाद. जो स्मॉल रेंज में मार्केट कंसोलिडेशन हो रहा था, मार्केट करेक्शन फेज में था, उस फेज में वो कंसोलिडेशन हो रहा था. नाउ मार्केट शोइंग योर साइन. तो फॉर एफएमसीजी इज द फर्स्ट सेक्टर वेयर जहां पर आपको ब्रेकआउट देखने मिल रहा है. ओके, सो थैंक यू सो मच. होप यू लाइक दिस वीडियो. हिट ऑन लाइक बटन, कमेंट आप कमेंट कीजिए. ठीक है, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई विल ट्राई टू कम लाइव ऑन अ वीक डेज फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन, जो हमने काफी दिनों से नहीं किया है. ठीक है, वो हम लोग शुरुआत करने की कोशिश करते हैं. थैंक यू सो मच. सी यू नेक्स्ट वीक. बाय.